Okay. So good morning, students. And now in this video, we shall continue our revision of chapter number 1, resources and development, that is already going in our class. Okay. In the previous video, we had revised about a few topics that were the resource planning in India. Also, we discussed about the conservation of resources. ठीक है जी, उससे पहले we have discussed about the agenda 21 and all those resources and all those topics. And now in this topic, in this video, we shall discuss our next topic on page number 5. Please check out page number 5 in your textbooks. That is the land resources. ठीक है जी, we shall discuss our this topic now, land resources. We have already discussed it in the class and now we shall revise this. Okay beta, land resources. Now in the previous video we had discussed that India doesn't have similar type of resources at every place. इंडिया में हिमालयाज़ जैसे रीजन्स भी हैं जहाँ पर थोड़े बहुत रिसोर्सेज मिलते हैं. इंडिया में नॉर्दर्न प्लेन्स जैसा एरियाज भी है दैट हैव नियर अबाउट ज़ीरो रिसोर्सेज. ठीक है, ओनली फर्टाइल लैंड. एंड इंडिया ऑल्सो हैज़ द रिसोर्सेज लाइक India also has the regions like plateaus that have very large quantity of resources. Okay, so that means India does not have same type of land, and that means India does not have similar quantity of resources also. Okay, but one minute. Okay, so land resources. And in land resources, you can see in your textbooks also, India has 43% of land area which is under plains. 43% land is under plains. ठीक है, ये हमारी plains के अंदर. In the case of India has 43% land under plains. Next, number 2, India has 30% of its land under the mountainous regions. 30% land mountains. And number 3, 27% of land is the plateau regions. ठीक है जी, this is our land division. This is our land resources division. अब देखो ना, इसमें हमें कोई खास रिसोर्सेज नहीं मिलते. अगर हम लोग रिसोर्सेज की बात करें तो इस एरिया में रिसोर्सेज आर नियर अबाउट जीरो. दिस रीजन यानी कि 43% ऑफ लैंड एरिया ऑफ इंडिया दैट हैज़ ओनली प्लेन्स is only northern plains that has only fertile land which is good for agriculture, but it does not have any type of minerals and all these things. Okay, तो जहाँ तक minerals की बात है तो यहाँ पर plains region में तो कोई minerals है ही नहीं. ठीक है, यहाँ पर सिर्फ agriculture के लिए अच्छी land है. Next, माउंटेन्स में बेटा बहुत कम हिस्से में हमें कहीं मिनरल्स मिलते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं. The major region of India that has lot of quantity of minerals in it is the plateau regions. ये हमारा प्लेट्यूज के लिए सबसे बड़ा रीजन है जहाँ पर हमारी 27% ऑफ लैंड है, यानी कि हमारा प्लेट्यू रीजन जिसमें आपके डेक्कन प्लेट्यू और छोटा नागपुर प्लेट्यू होता है प्लस मालवा प्लेट्यू. तो ये हमारा प्लेट्यू रीजन्स में ही हमारे ज़्यादातर हमें मिनरल्स मिलते हैं. और यानी कि इंडिया हैज़ 27% ऑफ लैंड एरिया दैट हैज़ द मिनरल्स एज अ रिसोर्स. ओके, जस्ट लाइक coal. You also have the regions like that have copper and ठीक है, mica, bauxite, ठीक है जी, iron ore. All these are found in the Chota Nagpur Plateau and Deccan Plateau regions. So that means we only have 27% of land that is under the plateau region and that has the mineral resources. Okay बेटा, ठीक है. Next topic is land utilization. ठीक है, ये topic था our land resources. Our next topic is land utilization. Now I'm rubbing this now. चलो, दैट इज नेक्स्ट टॉपिक बेटा लैंड यूटिलाइजेशन. ठीक है जी, लैंड यूटिलाइजेशन.
अब इसका मतलब क्या है कि हम अपनी लैंड को यूटिलाइज कैसे करते हैं। जो हमारी 43% ऑफ लैंड है वो हमारी प्लेन्स है, उसका कैसे यूटिलाइजेशन करते हैं। 30% ऑफ लैंड जो माउंटेन्स में है वो कैसे यूटिलाइज हो रही है, और 27% ऑफ लैंड जो कि प्लेट्यूज है उसका कैसे यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो नाउ वी शैल चेक लैंड यूटिलाइजेशन। हालांकि आगे लैंड यूटिलाइजेशन पैटर्न ऑफ इंडिया आगे भी आएगा, पहले हम लोग लैंड यूटिलाइजेशन ओवरऑल चेक करते हैं, ठीक है। लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड रिसोर्सेज आर यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पज। देखो बेटा, लैंड को कई तरह से यूज किया जाता है, अगर जरूरी नहीं इंडिया में, ओवरऑल ग्लोबली भी लैंड को कई तरह से यूटिलाइजेशन करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज फॉरेस्ट। आपको पता है दुनिया के कई सारे हिस्से में फॉरेस्ट जो है काफ़ी बड़े हिस्से में है, तो फॉरेस्ट जो है ये भी अपने आप में लैंड रिसोर्स है और अपने आप में लैंड यूटिलाइजेशन का अच्छा तरीका है। फॉरेस्ट का इस्तेमाल अल्टीमेटली हम लोग ही करते हैं, चाहे हम लोग फॉरेस्ट से वुड हासिल कर रहे हैं, चाहे हम लोग फॉरेस्ट से नेचुरल रिसोर्सेज हासिल कर रहे हैं, ठीक है, चाहे हम फॉरेस्ट की वाइल्ड लाइफ का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, चाहे हम लोग फॉरेस्ट से ईटेबल्स या फ्रूट्स वेजिटेबल्स इसमें आप लिख सकते हैं, ठीक है, मेडिसिन्स, ठीक है। फॉरेस्ट के कई सारे यूजेस हैं, तो ये सारे यूजेस जो हैं हम लोग फॉरेस्ट से कर रहे हैं। तो मतलब कि फॉरेस्ट अपने आप में, अगर हमारे देश में कहीं पर भी जंगल है, पूरी दुनिया में कहीं पर जंगल है, तो ये नहीं कि वो जंगल यूजलेस हैं, उनसे बहुत सारे इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ पर एक और बड़ा अच्छा यूज़ है जो फॉरेस्ट से होता है, वो क्या है भला? ऑक्सीजन। ये भी फॉरेस्ट का बड़ा अच्छा रोल है, अच्छा यूजेज है, ठीक है। फॉरेस्ट इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन, आपको पता ही होगा जो अमेजॉन फॉरेस्ट हैं साउथ अमेरिका में, उनको लंग्स ऑफ अर्थ कहते हैं, ठीक है ना, वो सारा फॉरेस्ट रीजन है। तो इसका मतलब फॉरेस्ट अपने आप में हर तरह का, फॉरेस्ट जो है ये अपने आप में हर तरह का एक तरह का लैंड यूटिलाइजेशन ही है, और इससे हम लोग कई तरीके से लैंड यूटिलाइजेशन करते हैं फॉरेस्ट में, ठीक है। तो पहला नंबर आ गया फॉरेस्ट का। नेक्स्ट नंबर टू आपका बेटा आता है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, ठीक है। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, ठीक है जी। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। अब इसमें आगे दो पार्ट्स हैं, बैरन एंड वेस्ट लैंड। नेक्स्ट नंबर टू, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग्स, रोड्स, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग्स, रोड्स, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। ठीक है, तो अब लैंड नॉट, देखो अब टॉपिक क्या हमारा, हेडिंग क्या है, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। अब यानी कि ऐसी लैंड जिसका इस्तेमाल कल्टीवेशन के लिए नहीं हो रहा, ठीक है, जिसका इस्तेमाल कल्टीवेशन के लिए नहीं हो रहा, ऐसी लैंड को हम लोग क्या बोल रहे हैं। अच्छा, ऐसी लैंड के ना दो पार्ट्स हैं, बैरन एंड वेस्ट लैंड, और दूसरी है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। देखो अब एक आ गई आपकी बैरन एंड वेस्ट लैंड। बैरन एंड वेस्ट लैंड मतलब जिसको, जो कि बंजर ज़मीन है, जिस पर एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है, जिस पर कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं है, तो वो क्या होगी आपकी बैरन एंड वेस्ट लैंड पड़ी हुई है। अब ये बैरन एंड वेस्ट लैंड को आप लोग किसी और काम के लिए यूज़ कर सकते हो। मान लो कोई बंजर ज़मीन है, उस पर आपको पता है खेती पॉसिबल नहीं है, एग्रीकल्चर कल्टीवेशन इज़ नॉट पॉसिबल है, तो आप लोग वहाँ पर कोई और काम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वैसे भी तो वेस्ट लैंड ही पड़ी, वैसे भी तो बैरन ही पड़ी है, वो बंजर ज़मीन है, एग्रीकल्चर तो होना नहीं, खाली पड़ी है, तो उसको आप लोग किसी और काम के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हम उसको किसी और काम के लिए, रोडवेज बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, हाईवेज बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, कॉलोनीज बनाने के लिए, स्कूल कॉलेजेस बनाने के लिए, हॉस्पिटल्स बनाने के लिए, ये सब के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा लैंड पुट नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। अब ऐसी लैंड जो ऑलरेडी यूज़ हो रही है, मतलब कि ऑलरेडी एग्रीकल्चर के लिए यूज़ नहीं हो रही पर दूसरे कामों के लिए यूज़ हो रही है, जैसे कि बिल्डिंग्स बनाने के लिए, फैक्ट्रीज, रोड्स एक्सेट्रा। इसमें और इसमें फ़र्क क्या होगा, ये अभी बैरन पड़ी है, बैरन और वेस्ट पड़ी है, ठीक है। आप खाली पड़ी है, आप अभी फिलहाल कोई यूज़ नहीं कर सकते, पर कर नहीं रहे, पर आप कर सकते हो यूज़, आप कर सकते हो। अभी मान लो कोई आपके स्कूल के आसपास या घर के
आसपास कोई दूर दूर तो खाली प्लॉट पड़ा हुआ, ठीक है, कोई काम नहीं हो रहा, खाली बंजर जमीन पड़ी है और आपको पता है यहाँ एग्रीकल्चर भी नहीं हो सकता, तो वो आप कर सकते हो यूज़ उसको किसी और काम के लिए, तो वो आ जाएगी इस कैटेगरी में, बैरन एंड वेस्ट लैंड। दूसरी ऐसी लैंड जो आप नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के लिए यूज़ कर रहे हो, जो आप लोग एग्रीकल्चर के लिए तो नहीं यूज़ कर रहे, पर आप लोग किसी और काम के लिए यूज़ कर रहे हो। आप बिल्डिंग बनाइए, फैक्ट्रीज बनाइए, रोड बनाइए, जैसे आपका घर है, आपका ऑफिस है, आपका स्कूल है, कॉलेज है। अब वो क्या है, वो मान लो वहाँ पर एग्रीकल्चर तो पॉसिबल था पर आपने वहाँ पे कुछ और बना लिया, तो वो क्या हो गया, इन कामों के लिए यूज़ कर रहे हो। तो आप लोग क्या कर रहे हो, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। अब आप ये नहीं कह सकते कि वो बैरन लैंड है तो वेस्ट लैंड, बेकार पड़ी है लैंड, आप उसको किसी और काम के लिए यूज़ कर रहे हो, तो दैट मीन्स वो इस कैटेगरी में आ जाएगी, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। इस लैंड को भी हम इस कैटेगरी में ला सकते हैं। कैसे, यहाँ पर भी ये सारा कुछ कर दो, समझ लगी ना बात। ये जो ये लैंड है, बैरन एंड वेस्ट लैंड, ये बेकार पड़ी है, इसको आप लोग, इस लैंड को आप लोग इस कैटेगरी में आराम से ला सकते हो अगर आप लोग ये सारे काम शुरू करो। ये क्योंकि वैसे भी एग्रीकल्चर तो पॉसिबल है नहीं, तो बेटर है आप लोग यहाँ पर ये शुरू कर दो, तो कम से तो इससे क्या होगा, ये वाली जो कैटेगरी है वो इसमें आ जाए, नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। समझ लगी बात बेटा, क्लियर। नेक्स्ट नंबर 3, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। Number 3, other uncultivated land excluding fallow land. ठीक है जी। अब देखो ना, फैलो लैंड आगे आएगा, क्या होता है फैलो लैंड भी अगर 2 तरह का होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज फैलो लैंड। ठीक है, कहते हैं अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, ऐसी लैंड। अब नंबर 3 आपकी टॉपिक है ऐसी लैंड जो कि फिलहाल अनकल्टिवेटेड है। एक तो आपकी बिल्डिंग्स वगैरह में होगी ना ये लैंड, ये भी अनकल्टिवेटेड लैंड होगी। अब इसके अलावा अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, नंबर 1 परमानेंट पेस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड। परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड। ठीक है, ऐसी लैंड जो आप लोग घास के, पास्चर्स क्या हो गया आपके घास के मैदान, और जहाँ पे आप लोग बड़े बड़े घास के मैदान है, वो क्या है आपकी, आप घास के मैदान को कल्टीवेट नहीं करते, घास अपने आप ही उगनी शुरू होती है। घास उगाने के लिए आपको खुद ज़मीन को पानी नहीं देना पड़ता, उसको कल्टीवेशन नहीं करना पड़ता। वो अनकल्टिवेटेड लैंड पर भी आपने देखा होगा घास अपने आप ही उगनी शुरू होती है। तो ऐसे, और वहाँ पर आप लोग परमानेंट पास्चर्स, ठीक है, बड़े बड़े घास के मैदान, और आपके ग्रेजिंग लैंड जहाँ पर आप अपने जानवरों को चराने का काम कर रहे हो। तो ये सारे, ये किसकी कैटेगरी में आ रहे हैं आपके, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड्स के। तो ये ऐसी लैंड्स हैं जहाँ पर आप लोग खुद कल्टीवेशन नहीं कर रहे, पर वहाँ पर घास के मैदान अपने आप ही उगे हुए हैं, तो आप उन घास के मैदानों में ग्रेजिंग करवाते हो अपने कैटल्स को, अपने जानवरों को। तो वो इस कैटेगरी में है, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। नेक्स्ट नंबर 2, लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स, दैट इज ग्रोव्स नॉट इंक्लूडेड इन द नेट सोन एरिया। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स, ठीक है जी, ट्री क्रॉप्स, ग्रोव्स नॉट इंक्लूडेड इन द नेट सोन एरिया, नॉट इंक्लूडेड इन द नेट सोन एरिया, ये भी आ गया है, नॉट इंक्लूडेड इन द नेट सोन एरिया। अच्छा, अब लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स, ग्रोव्स, जैसे आपने मान लो अपनी लैंड को, अपनी ज़मीन को आपने वहाँ पे क्रॉप्स नहीं उगाए, बल्कि आपने अलग अलग तरह की ट्रीज उगाए हुए हैं, उनको आप लोग इस कैटेगरी में रखो, लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप ग्रोव्स दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेट सोन एरिया। ठीक है ना, मतलब वहाँ पर आप लोग क्रॉपिंग नहीं कर रहे, आप लोग क्रॉप्स नहीं उगा रहे, लेकिन आपने ट्रीज उगाए हुए, मान लो आपने आम के पेड़ उगाए हुए हैं, ठीक है, आपने मैंगो ट्रीज का बड़ा सा फार्म बनाया हुआ है, आपने सेब के पेड़ उगाए हुए हैं, आपने ऑरेंज के ट्रीज उगाए हुए हैं, तो वो भी है तो एग्रीकल्चर का हिस्सा, लेकिन वो क्या है, क्रॉप्स का हिस्सा नहीं, वो क्रॉप्स में नहीं आते, ठीक है, वो प्लांटेशन में आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वो सारे, उसको हम किस कैटेगरी में डाल रहे हैं, लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप ग्रोव्स, ये इस कैटेगरी।
वो क्रॉप्स में नहीं आते, वो अपने ट्रीज उगाए हुए हैं, तो एग्रीकल्चर का पार्ट है वो, लेकिन वो अलग से हम ट्री क्रॉप्स ग्रोव्स अलग में रख रहे हैं, हम लोग उसको क्रॉप्स में नहीं रख रहे, ठीक है। तो लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप ग्रोव्स बट नॉट इंक्लूडेड इन द नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया में आप हमेशा आपका क्रॉप एरिया आता है जहाँ पे आप लोग क्रॉप्स उगा रहे हो, ठीक है। ये भी नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो ये आपका थर्ड पॉइंट कि हम लोग जो लैंड यूटिलाइजेशन का टॉपिक पढ़ रहे हैं कि वहाँ के लैंड को कैसे कैसे यूज़ किया जाता है दुनिया में, लैंड यूटिलाइजेशन कैसे होती है। तो ये था आपका थर्ड पॉइंट, अदर अनकल्टिवेटेड। अब देखो ये भी तो लैंड का यूज़ हो ही रहा है, यहाँ पे आप लोग परमानेंट पेस्चर्स में घास उगाए हुए हैं और अपने ग्रेजिंग करने के लिए जानवरों को यूज़ कर रहे हो, तो आप लोग यहाँ पर भी लैंड यूटिलाइजेशन कर रहे हो, ठीक है। लेकिन आप लोग अनकल्टिवेटेड लैंड यूज़ कर रहे हो, आप लोग खुद नहीं कल्टिवेशन कर रहे, लेकिन लैंड को अनकल्टिवेटेड लैंड के ऊपर घास के मैदानों में अपने जानवरों को ग्रेजिंग करा रहे हो, तो लैंड यूटिलाइजेशन कर रहे हो बट अनकल्टिवेटेड लैंड के ऊपर। नेक्स्ट अगेन लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप। अब ये भी लैंड यूटिलाइजेशन है, पर ये क्या है, ऐसी ज़मीन है जिसको आप लोग क्रॉप्ड एरिया में नहीं रख रहे, ठीक है ना, जिसको आपको यहाँ पे कल्टीवेशन तो डेफिनेटली होगी पर क्रॉपिंग नहीं होगी, तो ये भी लैंड यूटिलाइजेशन हो रही है पर ट्रीज के रूप में, तो ये भी आपका ये भी लैंड यूटिलाइजेशन। नेक्स्ट फैलो लैंड्स, नंबर 4 अब आएगा आपका फैलो लैंड्स, पूरे रखो। अच्छा, नंबर 4 फैलो लैंड्स, ठीक है। इसके लिए अलग से भी क्वेश्चन लिख लो, व्हाट आर फैलो लैंड्स एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फैलो लैंड्स, ठीक है। व्हाट आर फैलो लैंड्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फैलो लैंड्स, एक्सप्लेन। 3 मार्क्स, 1 मार्क्स और 3 मार्क्स। अब देखो बेटा, फैलो लैंड्स, फैलो लैंड्स होती है ऐसी लैंड्स जिनको ना आपने कुछ टाइम के लिए अनकल्टिवेटेड छोड़ा हो, दैट इज़ योर फैलो लैंड्स, ठीक है ना। अब इसके आगे 2 टाइप्स हैं, करंट फैलो लैंड और दूसरा है अदर देन करंट फैलो लैंड, ठीक है ना। अगर फैलो लैंड की डेफिनेशन लिखनी है तो यू कैन राइट द डेफिनेशन, द लैंड दैट इज लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन, that is left without cultivation for a particular time period is known as fallow land, ठीक है। इसको आप लोग फैलो लैंड बोलते हैं, ऐसी लैंड जिसको आपने कुछ टाइम के लिए किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए आपने खाली छोड़ रखा हो, ऐसी लैंड को आप लोग हमेशा क्या बोलते हो, द फैलो लैंड, ठीक है। अब इसी फैलो लैंड के आगे 2 पार्ट्स हैं। नंबर 1 प्लीज अंडरलाइन, करंट फैलो लैंड, ठीक है। करंट फैलो लैंड, इसमें क्या आ रहा है, इसकी डेफिनेशन भी साथ ही दी हुई है, लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर, सॉरी फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर, ठीक है। यानी कि सीधे आप लिख सकते हो द लैंड दैट इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड, द लैंड दैट इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द टाइम पीरियड ऑफ 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर, फॉर द टाइम पीरियड ऑफ 1 और लेस देन 1 ईयर, ठीक है। 1 एग्रीकल्चर एरिया ऐसे लिख सकते हो। तो करंट फैलो लैंड, ऐसी लैंड जिसको आपने 1 साल या 1 साल से कम टाइम के लिए खाली छोड़ रखा है, ऐसी लैंड को आप लोग बोलते हो करंट फैलो लैंड, ठीक है। आप खाली क्यों छोड़ते हो, कि वो कुछ टाइम के लिए मैं खाली छोड़ रहा हूँ ताकि वो अपने न्यूट्रिएंट्स को वापस गेन कर सके, हम खाली छोड़ते हैं ना, तो दैट इज, ठीक है। तो ऐसी लैंड जिसको, पहले तो फैलो लैंड क्या होता है, जिसको हमने किसी टाइम पीरियड के लिए जिस लैंड को खाली छोड़ रखा हो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं फैलो लैंड। इसके 2 पार्ट्स हैं, करंट फैलो लैंड एंड अदर देन करंट फैलो लैंड। करंट फैलो लैंड जिसको आपने 1 साल या उससे कम टाइम के लिए खाली छोड़ा, वो होगी आपकी करंट फैलो लैंड। दूसरी अदर देन करंट फैलो लैंड, जिसको आपने 1 साल से लेकर 5 साल या उससे भी ज़्यादा टाइम के लिए खाली छोड़ रखा हो, वो आपकी कौन सी होगी, आपकी ये सॉरी ये कौन सी होगी आपकी 5 साल तक के लिए करंट फैलो लैंड, अदर देन करंट फैलो लैंड, ठीक है। ये भी लिख लेते हैं, अदर देन करंट
फैलो लैंड, ठीक है जी। यानी कि सेम ऐसे द लैंड दैट इज लेफ्ट uncultivated for the time period of 1 to 5 years is known as other than current fallow land, ठीक है, is known as other than current fallow land। ये बोलो मतलब कि ऐसी ज़मीन जिसको आपने 1 से 5 साल की, ऐसी ज़मीन जिसको आपने 1 से 5 साल तक के टाइम पीरियड के लिए खाली छोड़ रखा हो, ऐसी लैंड को आप लोग क्या बोलते हैं, अदर देन करंट फैलो लैंड। अब सवाल उठता है कि आपकी 5 साल से ज़्यादा के लिए अगर कोई खाली छोड़ रखा हो तो वो कौन सी लैंड होती है? उसका पता है क्या आंसर है उसका? अभी वापस थर्ड पॉइंट पे आओ। थर्ड पॉइंट का सी पार्ट देखो बेटा, थर्ड पॉइंट का सी पार्ट कल्चरेबल वेस्ट लैंड, वो है थर्ड पॉइंट, वो देखो कल्चरेबल वेस्ट लैंड। ऐसी को आप लोग क्या बोलते हो? लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर्स। वो कौन सी होती है आपकी? अदर देन करंट फैलो लैंड। हालांकि वो कौन सी होती है आपकी? सॉरी, कल्चरेबल वेस्ट लैंड। और उसको आप लोग इसमें नहीं रखोगे फैलो लैंड में, उसको आप लोग रखोगे अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, उसमें रखोगे। समझ लगी चीज़? जो फैलो लैंड है आपकी, फैलो लैंड के 2 पार्ट्स हैं, ध्यान से समझ लो। फैलो लैंड के 2 पार्ट्स हैं, ये पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट। फैलो लैंड के ये 2 पार्ट्स हैं। जो 1 साल से कम टाइम के लिए खाली है वो करंट फैलो लैंड, जो 1 साल से लेकर 5 साल के लिए खाली है वो अदर देन करंट फैलो लैंड। लेकिन सवाल उठता है कि जो 5 साल से भी ज़्यादा, मान लो 6, 5.5 साल, 6, 7, 8, 10, 15 साल से खाली पड़ी हो, उस लैंड को हम किस कैटेगरी में रखेंगे? उसको आप लोग थर्ड पॉइंट की कैटेगरी में रखोगे, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड की जो सी ऑप्शन है, कल्चरेबल वेस्ट लैंड, वो आप उसमें रखोगे। दैट इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर्स, उसमें रखोगे, ठीक है। यानी कि उसकी, ठीक है, समझ लग गया बेटा? ये मैं बंद रब कर रहा हूँ जरा। यानी कि जो आपका थर्ड पॉइंट है, ये जो आपने अभी डिस्कस किया हमने, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, ठीक है, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, ठीक है। इसके थर्ड पार्ट में, जो कि अभी हमने पहले डिस्कस नहीं किया था, अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पहले इसीलिए मैंने डिस्कस नहीं किया था ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। इसका थर्ड पार्ट अब हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज कल्चरेबल वेस्ट लैंड। कल्चरेबल वेस्ट लैंड, हाँ, इसमें वो जमीन आएगी जो कि दैट इज द लैंड दैट इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड, फॉर मोर देन 5 ईयर्स। ऐसी ज़मीन को आप लोग बोलोगे, कल्चरेबल वेस्ट लैंड, कल्चरेबल वेस्ट लैंड, ठीक है। नाम उसका ये होगा और कैटेगरी ये होगी। समझ लगी बात? जो 1 साल से कम टाइम के लिए खाली है वो होगी, वो ज़मीन कहलाएगी करंट फैलो लैंड और कैटेगरी होगी फैलो लैंड, ठीक है ना। कैटेगरी होगी फैलो लैंड, लेकिन ज़मीन का नाम होगा करंट फैलो लैंड, क्योंकि आपने 1 साल से कम टाइम के लिए खाली छोड़ी। नेक्स्ट, जो 1 से 5 साल के लिए खाली छोड़ी है, उस ज़मीन का नाम होगा अदर देन करंट फैलो लैंड, लेकिन उसकी कैटेगरी भी होगी फैलो लैंड। लेकिन जो 5 साल से भी ज़्यादा टाइम के लिए खाली पड़ी होगी, उस ज़मीन का नाम होगा कल्चरेबल वेस्ट लैंड और कैटेगरी उसकी होगी अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। उसकी कैटेगरी फैलो लैंड नहीं होगी, ठीक है ना। उसकी कैटेगरी फैलो लैंड नहीं होगी, उसकी कैटेगरी ये होगी अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, ठीक है। और ज़मीन का नाम होगा कल्चरेबल वेस्ट लैंड। क्यों? क्योंकि वो 5 साल से भी ज़्यादा टाइम से खाली पड़ी है। क्लियर बेटा? इसीलिए इसको हमने पहले डिस्कस नहीं किया था, इसको हमने अब डिस्कस किया ताकि ज़्यादा बेटर क्लियर उसको। क्लियर? नेक्स्ट, नंबर 5, नेट सोन एरिया। ये अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है। प्लीज राइट द क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म नेट सोन एरिया फॉर 1 मार्क्स। व्हाट इज मेंट बाय द टर्म नेट सोन, ठीक है। इसके नाम से क्लियर हो रहा है इसमें क्या होगा। नेट सोन एरिया, टोटल एरिया जहां पर सोइंग हो रही है। सोइंग मतलब बीज बोना,
तो आपके देश का टोटल एरिया जहां पर आप लोग बीजारोपण कर रहे हो, जहां पर आप लोग सोइंग कर रहे हो, दैट इज योर नेट सोन एरिया. अंडरलाइन द डेफिनेशन गिवन इन योर बुक. एरिया सोन मोर देन वंस इन अ ईयर, एग्रीकल्चर ईयर, प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज क्रॉप क्रॉस एरिया. इसको पहले को पूरे डेफिनेशन टिक कर लो. ठीक है, यानी कि नेट सोन एरिया अगर इसकी बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन बनानी हो तो द टोटल एरिया में द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री वेयर sowing of seeds इज टेकिंग प्लेस. ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, कॉमन लैंग्वेज में इसका आंसर है कि नेट सोन एरिया, द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री वेयर सोइंग ऑफ सीड्स इज टेकिंग प्लेस इज नोन एज नेट सोन एरिया, टोटल सोइंग एरिया. ठीक है, अगर इसको हम लोग प्रॉपरली लिखना चाहे तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे बुक में लिखा है एरिया सोन मोर देन वंस इन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया ऑफ इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप एरिया. इसका दूसरा नाम भी लिख लो, इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया. इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया. अगर इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखना हो तो पता है कैसे लिख सकते हो? इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखना हो, टोटल एरिया ऑफ द कंट्री माइनस अनकल्टिवेटेड लैंड. ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा आपका नेट सोन एरिया या ग्रॉस क्रॉप एरिया, कि जितना आपके देश का टोटल एरिया उसमें से अनकल्टिवेटेड लैंड को माइनस कर दो, तो वो जो आंसर आ जाएगा आपका नेट सोन एरिया या ग्रॉस क्रॉप एरिया. या फिर दूसरी तरह से एरिया सोन मोर देन वंस इन ईयर, ऐसा एरिया जिसमें एक साल से ज़्यादा मतलब एग्रीकल्चर हो रहा है. ठीक है, प्लस नेट सोन एरिया. ठीक है, टोटल नेट सोन एरिया के अंदर इसको ऐड कर दो. ये डेफिनेशन को जस्ट लर्न कर लेना, सिंपल डेफिनेशन ये या फिर सिंपल ऐसे कि द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री माइनस द नेट सोन एरिया. ठीक है, द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री माइनस अनकल्टिवेटेड लैंड, माइनस अनकल्टिवेटेड लैंड, दैट इज नोन एज नेट सोन एरिया. ठीक है, ये है, लिख लो यहाँ पे टोटल एरिया of the country minus total uncultivated land, equals to net sown area. ठीक है, तो जितना आपके देश का टोटल एरिया है उसमें से आपने जितना अनकल्टिवेटेड एरिया जो है उसको माइनस कर दिया. ठीक है, तो वो क्या आ गया आपका नेट सोन एरिया, टोटल एरिया जहाँ पर आपकी एग्रीकल्चर हो रही है, जहाँ पर आपकी सोइंग हो रही है. ठीक है, ये था आपका बेटा लैंड यूटिलाइजेशन. ठीक है, आगे लैंड यूज पैटर्न ऑफ इंडिया, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. ठीक है, हाँ, ये हम लोग सारा नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द लैंड यूज पैटर्न ऑफ इंडिया. ये भी था टोटल लैंड यूटिलाइजेशन. ठीक है, अभी ओवरऑल लैंड यूटिलाइजेशन कैसे होता है, नेक्स्ट वीडियो वी शैल डिस्कस कि व्हाट इज़ द लैंड यूज पैटर्न ऑफ इंडिया या व्हाट इज़ द लैंड यूटिलाइजेशन पैटर्न इन इंडिया. ये हम सारा नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. ठीक है जी, एंड ऑल्सो वी शैल रिवाइज द मैप वर्क ऑल्सो, इसका मैप वर्क भी रिवाइज करेंगे. ठीक है जी, सो दिस वॉज आवर टुडेज वीडियो. तो सेंड योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल क्लियर दोज डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन. ओके, सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू लेटर. थैंक यू सो मच.